नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुल पत्रिका। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी पहुंचे, जहां छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ पहुंचे। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पहुंचने पर कुलपति प्रोफेसर श्री रामगोपाल राव, निदेशक सुधीर कुमार बराई और उप अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने छात्रों, सदस्यों और सरकारी गणमान्य व्यक्तियों की एक बड़ी सभा को भी संबोधित किया और कहा कि सफलता की आधारशिला के रूप में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है और इस विषय पर भी उन्होंने चर्चा की और कहा कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत और आने वाले समय में विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तत्पर है। कमजोर थी, जांटी पर चढ़ गए। टू हैव कनेक्टिविटी, ताकि हेल्थ वर्कर सही समय पर गांव पहुंच पाए। और कितना बदलाव आ गया, वो कनेक्टिविटी अब दुनिया देखती है, चमत्कारित मानती है। प्रोफेसर वी रामगोपाल राव had an extremely fruitful, impactful presence in IIT दिल्ली, और इनका तो IIT से नाता पुराना है। As director IIT Delhi and student and faculty at IIT Bombay. You are lucky to have such a vice chancellor. A vice chancellor is the soul of the university, soul of an institution. It is he who decides how you shall be calibrated globally and nationally. You are lucky. Professor Sudhir Kumar Barayi ji, Director BITS, he brings on the table huge exposure experience, particularly from Indian Institute of Science, Bangalore. My greetings to all the faculty members. My utmost love and affection for all the students. From Jhunjhunu, Sri Narendra Khichad. Khichad is much more than a member of parliament. His passion and mission is education. He got into politics because he served the cause of education. And therefore, congratulations to him. Sri Subhas Punia, an MLA from the district. I had the occasion to be member of parliament from Jhunjhunu in 1989. I had the good fortune to be the first ever union minister from Jhunjhunu. And then I got a massive support from Surajgarh, a constituency he represents. We have our Jila Pramukh. Special greetings to her. It is only by chance she happens to be daughter-in-law of the Honorable MP. But she is there in her own right. I am lucky to belong to a village to which she also belongs. She represents emergence of the girl power, the woman power. You are lucky to have a good collector. He looks very simple, but is very effective. And so is the case with SP. My greetings to all the district officials. और ये यादगार पल मैं सदा याद रखूंगा। Boys and girls, I came here 33 years ago. I came in the August company, celebrated company of the then President of India, Venkat Ramanji.
Venkataraman ji, I remember him for two good reasons. One, a genius, but I was lucky to be administered oath of office of a union minister by Venkataraman ji. K.K. Birla ji was here then. That was a great occasion. और मेरा रिश्ता नाता आपसे उसी दिन बन गया था. मैं मानकर चलता हूं कि मोस्ट ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर हियर तब वो धरती पर प्रकट भी नहीं हुए होंगे. मेरे सामने कौन है? I have before him not future of India. I have before me boys and girls who will shape the destiny of Bharat. You are the foot soldiers. In September 2022, that was a glorious month. When 10 years ago, in the global economy, we were at number 10 or 11. But in September 2022, we became the 5th largest global economy on the planet. और कहते हैं ना, अखाड़े में मजबूत पहलवान को धूल चटाते हो तो कुछ आनंद ही और है. अरे घोड़े पर से सवार गिरे तो ठीक है, पर घोड़ा भी साथ में गिरे तो यादगार पल बनता है ना. हमने किनको पछाड़ा? हम 5वीं महाशक्ति आर्थिक बने दुनिया में. किनको पछाड़कर? उन अंग्रेजों को जिन्होंने हम पर सदियों तक राज किया. I have no doubt, boys and girls, by turn of the decade, इसी दशक के अंत तक, our Bharat will be the 3rd largest global economy. अब भारत के बढ़ते हुए कदमों को कोई रोक नहीं पाएगा. Our rise is unstoppable. Our rise is incremental. You know the meaning of incremental. It will be geometrical, not arithmetic. ऐसे भारत में आज के दिन आप रह रहे हो. और कैसे इंस्टीट्यूट? जिस इंस्टीट्यूट की शुरुआत कॉमर्स के लिए नहीं हुई, पैसे कमाने के लिए नहीं हुई, समाज को बदलने के लिए हुई. इस इंस्टीट्यूट ने जो अब तक हासिल किया है उसमें बहुत से लोगों का योगदान है, पर इसकी शुरुआत सबसे पहले जिस व्यक्ति ने की, उनके दर्शन मुझे 1971 में हुए. और वो किस्सा बताता हूं. मोस्ट रेस्पेक्टेड जीडी बिड़ला जी, I have the good fortune to know all your chancellors. K.K. बिड़ला जी के बारे में बताया था. I was here. जी.डी. बिड़ला जी का आशीर्वाद मुझे मिला 71 में. पर उस आशीर्वाद में मुझे एक बात नजर आई, which I can never forget. एक जगह फोटोग्राफ होनी थी. लाइन में सब खड़े हो गए. उम्र मेरी कम थी, मैं आखिरी पंक्ति में था. फ्रंट रो के अंदर काफी बैठे थे. जी.डी. बिड़ला जी के साथ वो मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता था. उसी समय जी.डी. बिड़ला जी के बड़े भाई आए. किसी ने कुर्सी खाली नहीं की. जी.डी. बिड़ला जी ने कुर्सी खाली की. वो आखिरी रो में आ गए और मेरे पर हाथ रखा. That was a blessed moment for me. Your present Chancellor,
is a picture of success, sublimity, humility, and a creator, a low-profile worker for the nation, Shri Kumar Mangalam Bidla. I am grateful to him. He knows I am here. He was very delighted. He is known to have introduced absolute professionalism in the industry. Salutations to him. आपका मोटो जब देखता हूं तो मुझे समझ में आ गया कि देश और दुनिया में आपकी फैकल्टी ने इतना नाम क्यों कमाया है। एक्सट्रीमली इंपैक्टफुल प्रेजेंस। और आपका मोटो ज्ञानम परमम बलम, नॉलेज इज पावर। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। नो वन इन द वर्ल्ड विल डिस्प्यूट इट। बट I will have a suggestion for you. You are the people who will make Bharat what it will be in years to come. Please never have fear in your mind. Never. But never have fear of failure. ये बहुत बड़ी बीमारी है, आदमी और समाज को खत्म कर देती है कि मैं प्रयास करूंगा और असफल हो जाऊंगा। ध्यान रखिए, दुनिया के चमत्कारिक विकास के मुद्दे, अनुसंधान के मुद्दे, रिसर्च और डेवलपमेंट के मुद्दे प्रथम प्रयास में नहीं हुए हैं। यू मस्ट नेवर बी अंडर द फियर ऑफ फियर। यू मस्ट नेवर फियर फेलियर। यू मस्ट ऑलवेज बी इनोवेटिव। You must always take a step to translate your idea into action. हम ह्यूमैनिटी के प्रति बड़ा अनादर करेंगे यदि अगर एक उत्तम विचार हमारे मन में आता है, an idea occurs in our mind, a brilliant idea, और हमारे दिमाग को हम पार्किंग स्टेशन कर देते हैं। आइडिया वहां पार्क रहता है, हम करते नहीं है। नो, never ever allow an idea to be parked in your mind. Take a leap of execution in the larger world. उससे आपको पता लगेगा how history has been created. You are lucky to be living in times where you have freedom कि आप क्या करोगे। हमारे समय क्या होता था, अर्जुन जी के समय क्या होता था, जन्मते कहते थे इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। अरे भाई, वो जो बने उसको वो बनने दो। वो बिलियर्ड्स खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, पेंटर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। अब ऐसा नहीं है। नाउ यू हैव फुल अपॉर्चुनिटी एंड बॉयज एंड गर्ल्स, आई कैन टेल यू द एंटायर वर्ल्ड इज स्टन्ड एट अस. India is the only country in the world at the moment where there is an ecosystem where every young mind, every boy and girl can unleash full energy, exploit full potential, realize dream and aspirations. और ये हो रहा है। आपको मैं यदि अगर 2 साल की घटना बताऊं, वो आप जैसे लोगों ने की है, बॉयज एंड गर्ल्स। इफ इंडिया हैज अ प्राइड ऑफ प्लेस इन स्टार्टअप्स, इन यूनिकॉर्न्स, हमारे चाइना से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, वो यंग माइंड्स ने किए हैं। द होल वर्ल्ड इज बिफोर यू, सो नेवर हेजिटेट, टेक अ बिग लीप। और कुछ लोगों को मैं याद दिलाऊंगा, ये तो नंबर 1 पर रहने की आदत है ना, कि क्लास का टॉपर रहना है, वो टॉपर नहीं रहूंगा तो क्या होगा। हेवंस हैव नेवर फॉलन, गिरे हैं क्या आज तक? तो फिर आप जैसे अच्छे लोगों के लिए क्यों गिरेंगे?
Heavens have never historically fallen. मैं क्लास में हमेशा प्रथम रहा और इस डर के तहत जिया कि प्रथम नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत देर बाद पता लगा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसके बड़े फायदे होते, कुछ दोस्त बनते, कुछ लोगों से दुश्मनी कम होती। आप देखिए, यू वुड नॉट नो, अर्जुन जी को पता है, पहले अमूल नहीं होता था, पोल्सन होता था। डायरेक्टर साहब, पोल्सन होता था, वीसी साहब। और जब मैं किसी अध्यापक से चर्चा करता था तो पीछे से बच्चे क्या कहते थे पता है? पोल्सन पोल्सन पोल्सन, कि टीचर को पोल्सन लगा रहा है। गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट नाउ। I had the occasion of a good education which we are having now. When I got 100% scholarship in Sunny School. As vice president, when I went to Sunny School, boys and girls, मैंने क्या कहा और वो आप सब पर लागू है। मैंने कहा I was born biologically in village किसाना, तो यहां से 20-25 किलोमीटर दूर है। But my real birth took place in Sunny School, चित्तौड़गढ़। I am product of education. हम चारों के चारों में एक कॉमन बात है, we are here only because of education. As Governor State of West Bengal, I was involved in the formation of National Education Policy. Transformational है, effective है, impactful है. I'm happy it is being implemented. इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आदमी अपनी प्रतिभा के अनुसार अपनी मनमर्जी के हिसाब से करे। पर दो बातें मनमर्जी के हिसाब से नहीं कर सकते, जिसमें मैं आपको आगाह करता हूं। एक कहता है मेरी मर्जी, मेरा पैसा, चाहे जितना पेट्रोल काम में लूंगा। अरे भाई, पेट्रोल आपकी आर्थिक ताकत से कनेक्टेड नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो समाज के हैं, वो कलेक्टिवली हैं, वो पैसे की ताकत से उपयोग नहीं हो सकता। यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, एनर्जी, वाटर हैज टू बी ऑप्टिमल। वी ऑल हैव टू सब्सक्राइब टू इट। आवर मनी पावर, आवर पॉकेट पावर कैन नॉट डिसाइड कि हम कितना पेट्रोल कहां में लेंगे। वी आर ट्रस्टीज, ये आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरा, यू आर थिंकिंग माइंड्स, यू आर डिसनिंग माइंड्स। आपका थॉट प्रोसेस बहुत मैटर करता है। यदि अगर पार्लियामेंट में गतिविधि ठीक नहीं चल रही है, पार्लियामेंट अ प्लेस फॉर डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन, और उस जगह यदि अगर डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन होता है, आपके यहां घंटी बजनी चाहिए कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव सही काम क्यों नहीं कर रहा है। You are the ultimate stakeholders in democracy. आपसे बड़ा स्टेक होल्डर गवर्नेंस का कोई नहीं है। I would therefore appeal to you कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आए, एक काम कीजिए, डोंट बी इन साइलेंस मोड, अपने विचार को व्यक्त कीजिए। G20 सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी, सपना भी नहीं देखा था। सपना क्यों नहीं देखा था? 89 में एमपी बना, केंद्र में मंत्री बना और खुद देखा कि भारत का सोना फिजिकल शेप के अंदर हवाई जहाज से विदेशी बैंकों के अंदर गिरवी रखा गया ताकि हमारी आर्थिक स्थिति बनी रहे। वी आर डिक्लेयर्ड अ कंट्री दैट कैन सस्टेन। क्या नजारा था। 1-2 बिलियन डॉलर हमारे पास नहीं थे, 15 दिन तक का खजाना नहीं था। आज जब देखता हूं ओवर 600 बिलियन डॉलर्स रिजर्व है, ये मुद्दा ही नहीं है।
आज से 10-12 साल पहले दुनिया के अंदर कहते थे फ्रेजाइल 5। ब्राजील, टर्की, इंडोनेशिया, उसमें भारत का नाम था। फ्रेजाइल 5 मीन्स दे वर अ बर्डन ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। छू दोगे तो टूट जाएंगे। दुनिया भर में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस फ्रेजाइल 5। इसी कड़ी में पटौदी में पैगंबर हजरत मोहम्मद वी आर नाउ बिग 5। जामिया ये जर्नी क्यों हुई? तुम इस्लाम मदरसे में यू कैन इमेजिन माई प्राइड बॉयज एंड गर्ल्स। पहुंचे उलेमाओं ने द वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन के बारे में तकरीर की और G20 के अंदर कहते हैं तथा हुजूर के बताए गए भारत ने चलने की अपील की। मान्यताओं के फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है जन्म 6 साल ईस्वी में रबी वो 47 साल में भी संभव नहीं था। मक्का में हुआ। 47 मोहम्मद ईयर्स। साहब का जन्मदिवस मुसलमानों ने एक त्योहार वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कह रहे हैं तथा एक जुलूस भी और निकाला। क्यों नहीं कहें? ये जुलूस जामिया अहले सुन्नत मदरसे दुनिया का जो ट्रांजैक्शनल पुरानी है, तहसील डायरेक्ट नौहटा चौक, ट्रांजैक्शनल, व्यापारी मोहल्ला होते हुए जमाना वापस तक कहते थे 10 पैसा ही गाँव पहुंचता इस है। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम आज समुदाय के दिन लोगों ने और बच्चों न ने हिस्सा बिचौलिया लिया। है, इस जुलूस में बच्चे, युवा, न ब्रोकर है, तिरंगा लिए और न कटमनी है, पैसा जुलूस सीधा में जाता है। शामिल। And our digital transactions, boys and girls, in 2022, क्या थे? Our digital transactions were 4 times the collective transactions of USA, UK and France. सोचा था कभी? इनमें एक एक देश महारत है। इन चारों को जोड़ दो, 4 से गुना कर दो, तो भी हमारा भारत आगे है। ये हमारी हर भारतीय एकलव्य है। उसको कोई पढ़ाए, कोई सिखाए या न सिखाए, एकलव्य की तरह ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इंटरनेट यूसेज में देखिए, तो ये लोग कहते थे कि स्मार्टफोन को कैसे यूज करेंगे। गांव का हर व्यक्ति इतना नॉलेजेबल है, पढ़ाई भी कम हो सकता है। जब इंटरनेट यूसेज पर आते हैं, पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन, एंड यू बॉयज एंड गर्ल्स आर मोर इन्वॉल्व विद इट। पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन ऑफ इंटरनेट इन 2022 इंडिया का, चाइना और यूएसए दोनों को मिला दो, उससे भी ज्यादा है। आज की ये सब अगर हम और आप बैठे हैं तो कसम खुदा की किसी के बाप के नाम पर नहीं, बल्कि रसूल पाक के विजयनरी प्राइम मिनिस्टर जब मेरा इंट्रोडक्शन राज्यसभा में कराया, इस महफिल की उन्होंने कहा कृषक पुत्र, जो हमारे मेहमान में से है। मेरा मन तो खुश नहीं हुआ। आज के दिन इस टेक्नोलॉजी का फायदा 11 करोड़ फार्मर ले रहे हैं। साल में 3 बार सीधे उनके खाते में पैसा आता है, बिना कमीशन के, बिना कट के, सबके। और अब तक ये 2,50,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। बॉयज एंड गर्ल्स, गवर्नमेंट में भी पावरफुल टू सेंड मनी। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट इज मोर कमेंडेबल, कि किसान भी तैयार है रिसीव करने के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये मुद्दा देखकर दुनिया चकित है। भारत की बात आज दुनिया सुनती। I have been abroad on 3 occasions and I know the power and might and respect and image our Bharat has. Boys and girls, you are living in times where you have to look for opportunities. You have to give passage to your talent, to your aptitude. You have to have a direction of approach. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या कहता है? द लेडी प्रेसिडेंट ऑफ IMF, इंडिया
is the brightest economy in the world today. It is hot favorite destination of opportunity and investment. ये आपको ग्रैब करनी है. I have no doubt आप ऐसा हर आदमी करेंगे. मैं क्वेश्चन आपके लूंगा, इसलिए ज्यादा बातें नहीं करूंगा और 2 अनाउंसमेंट करूंगा. आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स. तो दुनिया में भारत का क्या इमेज है? आई विद द परमिशन ऑफ द वाइस चांसलर हु हैज बीन ग्रेशियस and the directors, there will be MOU between Indian Council of World Affairs and BITS, and that will be signed within 4 weeks. The director, Indian Council of World Affairs, Ambassador Thakur, enormously talented lady. मौलाना गुलाम रब्बानी ने बताया कि आज के दिन हजरत मोहम्मद अल्लाह के नबी बनकर इस दुनिया का वक्त के लोग बेटियों को जिंदा दफना देते थे. हमारे नबी तशरीफ लाए और उन्होंने ऐलान किया कि बेटियां ज़हमत नहीं बल्कि हमारे लिए रहमत है, और सख्ती से ऐलान किया कि आज के बाद बेटियां जिंदा दफन नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच का साथ दिया. उन्होंने कहा कि नबी का फरमान है किसी पर जुल्म ना करो, महिलाओं का सम्मान करो और अपने पड़ोसी का ख्याल रखो. अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाता है तो आपका खाना भी हराम हो जाता है. ये थी पटौदी से रफीक खान की रिपोर्ट. ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और पत्रिका टीवी देखते रहें. हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें. हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के नबी बनकर के दुनिया में आए, ये पहले किसी के दिमाग में नहीं आया. जो चांद की तारीख नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में आया. इस दिन सुबह के वक्त 4:35 पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए. इस दुनिया में आए जो उस टाइम का माहौल ये था, उस टाइम का वक्त ये था कि लोग बहुत तारीकी में छुपे हुए थे और अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे. और अगर किसी का शौहर का इंतकाल हो जाता था, किसी के हस्बैंड का इंतकाल होता है, तो उसके बेटे उसके शरीकदार, यानी जैसे कि जमीन बांटते हैं, जायदाद बांटते हैं, घर मकान बांटते हैं, इसी तरीके से उसकी बीवी के भी शरीक बन जाते थे और अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे. हमारे नबी तशरीफ लाए, हमारे नबी ने इसका ऐलान फरमाया कि यानी बेटियों को जिंदा दफन नहीं करना है. बेटियां सहमत नहीं है बल्कि बेटियां हमारे लिए रहमत है. बेटियां हमारे लिए रहमत है. मेरे नबी ने सख्ती के साथ ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी बेटी जिंदा दफन नहीं की जाएगी. अल्लाह तबारक व तआला ने इसी के बारे में हमारे कुरान में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. महबूब, हमने आपको तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा. रहमत का मतलब होता है कि बरसना, यानी किसी के ऊपर बारिश बरसना, रहमत बरसना अल्लाह की. तो हमारे नबी हम सब के लिए, पूरी कायनात के लिए, से कास्ट का जिक्र नहीं है, मुसलमानों का जिक्र नहीं है, हिंदू का जिक्र नहीं है, सिख का जिक्र नहीं है, ईसाई का जिक्र नहीं है, बल्कि उसमें जो है अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, हमने आपको तमाम कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर के भेजा. तो इसलिए हमारे नबी मुसलमानों के लिए भी रहमत है, हिंदुओं के लिए भी रहमत है, सिख ईसाई सब के लिए रहमत है. लेकिन शर्त यह है कि उनके तरीके को अपनाएं. जैसे हमारे नबी ने हमेशा सच का साथ दिया, झूठ से दूर रहे, उसकी मुखालिफत की, और लोगों जो जुल्म करते थे, सितम करते थे, उनको पास रहने को कहा कि किसी के ऊपर जुल्म ना करो, अपने पड़ोसी का हक करो. यहाँ तक के नबी ने फरमाया कि अगर किसी का पड़ोसी भूखा सो जाता है, अगर भूखा सो जाता है तो उसका खाना भी हराम हो जाता है. अब यहाँ भी ये जिक्र नहीं है कि कौन है भूखा सोने वाला, पड़ोसी कौन है, इससे मतलब नहीं है, बल्कि पड़ोसी है. अगर आपका पड़ोसी भूखा सो गया तो अल्लाह तबारक व तआला आपके खाने को भी हराम कर देगा, आपका पीना भी हराम है, इसलिए कि आपका पड़ोसी भूखा सोया. उनका आज जन्मदिन है, हम जन्मदिन मनाते हैं 12 तारीख को चांद की, और उनकी खुशियाँ मनाते हैं आमद की. तो उन्होंने हमें इतना बड़ा पैगाम दिया. सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह.
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप लोगों की हिदायत के लिए कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 नबियों को भेजा, और सबसे आखिर में जाहिरी एतबार से जो आए तो हमारे नबी जिसके आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, जिसे हम विलादत भी कहते हैं, पैदाइश भी कहते हैं, आज के दिन तशरीफ लाए। तो इस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो फरिश्तों के जरिए, जो फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन है, उसके जरिए 3 झंडे लेकर के भेजे कि 3 झंडे को नस्ब किया जाए। तो उसी सुन्नत को हम लोग अपना रहे हैं कि जब अल्लाह ने उस हबीब को भेजकर झंडा नस्ब किया तो हम भी उसी झंडे को लहराकर अल्लाह और हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर पैगंबर हजरत ये राजनेताओं पर टिप्पणी नहीं है, क्योंकि अर्जुन जी आप लोग हर चीज को मुमकिन कर देते हैं, खासकर आप अपने दिशा से चलते हैं, यू आर रिजल्ट ओरिएंटेड, अहले सुन्नत कुव्वतुम पर राजनीति में डिले हो जाती है। एक जुलसे का आयोजन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल पद से कई हुई बात की गरिमा है। I have to live up to the highest traditions of my predecessors. और They were giants. नमाज भी पढ़ी गई तथा हुजूर इसको के जल्दी बताए गए पूरी रास्ते करेंगे। पर चलने की अपील। समय अवधि में करेंगे। मान्यताओं के अनुसार तो हजरत समय मोहम्मद साहब का जन्म 570 वाइस चांसलर साहब सजेस्ट करेंगे। रबीउल अव्वल के We will 12वें execute दिन मक्का में हुआ था। as per that मोहम्मद schedule only. साहब का जन्म दिवस मुसलमानों ने एक अंत में, त्योहार के रूप में before I take your मनाया question, तथा एक जुलूस भी निकाला गया। ये जुलूस ये जामिया जो बिल हुआ अहले है सुन्नत मदरसे से निकलकर और राज्यसभा में सर्वसम्मत से हुआ है। चौक व्यापारी मोहल्ला होते It's हुए a game वापस changer. मदरसे में पहुंचा। It's इस epochal जुलूस में development. सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय धीरे के धीरे लोगों हमने ने और देखा बच्चों था ने हिस्सा लिया। इस कि जुलूस महिला में सरपंच बन बच्चे गई, युवा हाथों में तिरंगा लिए तो उसके और आगे इस्लाम खड़ा हो गया एक के लिए व्यक्ति, मैं वे सरपंच पति जुलूस हूँ। में शामिल हुए। अरे भाई आप क्या हो? मैं सरपंच पति हूँ। अरे भाई सरपंच जी को आने दो ना, मैं प्रधान पति हूँ, मैं जिला प्रमुख पति हूँ। बात खत्म हो गई है। वी हैव अ वेरी टैलेंटेड जिला प्रमुख है। जहाँ भी मैं ब्यूरोक्रेसी में महिलाओं को देखता हूँ, वो आर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अमेजिंग परफॉर्मेंस। बच्चों आप परेशान मत हो, अपने को चुनौती नहीं दे रहे हैं, अपने इनको हक दे रहे हैं। इट इज देयर एंटाइटलमेंट। सोसाइटी कैनॉट ग्रो if you do not give justice to 50% of humanity. दुनिया अचंभित और मेरे पास मैसेज है कि भारत में आखिर कैसे किया ये। हमने कहा हम ऐसे कालखंड में हैं जहाँ हर चीज को मुमकिन कर रहे हैं। चंद्रयान 3 पर जाकर तिरंगा स्पोर्ट कर दिया। पूछेंगे साइंस पूछेंगे वेयर इज तिरंगा पॉइंट वेयर चंद्रयान 2 लैंडेड, वेयर इज शिव शक्ति पॉइंट वेयर चंद्रयान 3 लैंडेड, विच इज द फर्स्ट कंट्री दैट लैंडेड इन साउथ पोल ऑफ मून, विच इज दैट कंट्री, विच इज दैट कंट्री दैट हैज सेंट to move a vehicle with instructions. आप देखिए हमारी शुरुआत क्या थी और पिछले 10 साल में दुनिया का कोई ऐसा बड़ा देश नहीं है जिसका सैटेलाइट इसरो ने जारी की है। तो ये करिश्मा करना हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और हम कर रहेंगे। पर जब मोर नाचता है, पंख देखता है, सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। पर जब अपने पांव की तरफ मोर देखता है तो मोर थोड़ा परेशान हो जाता है। बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोगों का हाजमा भारत की विकास यात्रा को देखकर गड़बड़ क्यों हो जाता है। ये आपको जवाब देना पड़ेगा। और स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए दुनिया को फिक्र लगती है। अरे कहीं तो मिल जाएगा कोई नहीं आपकी बात सुनने वाला। वी मस्ट निप इन द बट एंटी भारत नैरेटिव। आज के दिन जब ये कहा जाता है हार्वर्ड के अंदर कि इंडिया की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के अंदर मैरिट पर एडमिशन नहीं होते हैं, यू ऑल आर सो ऑफ इट।
Your admission to this institution is merit. We cannot allow anyone to taint, tarnish and demean our institutions. पहले लगता था कि कांस्टेबल इसको नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि बड़े बाप का बेटा है, बेटी है। वो कैसे खत्म हो गया और उसने आप लोगों ने कर दिया, सोशल मीडिया ने कर दिया नहीं। कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये बात कुछ लोगों को समझ में अब भी नहीं आ रही है। जब जाना चाहिए वो आते हैं सड़क पर। We cannot encourage such kind of approach. जब इंडिया का robust judicial system, why should we take to streets? Why don't we believe in rule of law? अंत में ये कहूँगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। Corruption is killer of democracy. Corruption is killer of growth. Corruption is killer of those who need assistance of the government. In 10 years, power corridors have been totally neutralized of power brokers. पता नहीं वो कहाँ चले गए, न तो उनकी चिट्ठी आती है, न उनका पत्र आता है। ये जमात खत्म हो गई है। मौलाना गुलाम रब्बानी ने बताया कि आज के दिन हजरत मोहम्मद अल्लाह के नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस वक्त के लोग बेटियों को जिंदा दफना देते थे। हमारे नबी तशरीफ लाए और उन्होंने ऐलान किया कि बेटियां रहमत नहीं बल्कि हमारे लिए रहमत है, और सख्ती से ऐलान किया कि आज के बाद बेटियां जिंदा दफन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच का साथ दिया। उन्होंने कहा कि नबी का फरमान है, किसी पर जुल्म ना करो, महिलाओं का सम्मान करो और अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाता है तो आपका खाना भी हराम हो जाता है। ये थी पटौदी से रफीक खान की रिपोर्ट। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और मृदुल पत्रिका टीवी देखते रहें। हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के नबी बनकर के इस दुनिया में आए, आज की तारीख जो चांद की तारीख 12 तारीख है, इस दिन सुबह के वक्त 4:35 पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस दुनिया में आए। उस टाइम का माहौल ये था, उस टाइम का वक्त ये था कि लोग बहुत तारीकी में छुपे हुए थे और अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। और अगर किसी का शोहर का इंतकाल हो जाता था, किसी के हस्बैंड का इंतकाल होता, तो उसके बेटे, उसके शरीकदार, यानी जैसे कि जमीन बांटते हैं, जायदाद बांटते हैं, घर मकान बांटते हैं, इसी तरीके से उसकी बीवी के भी शरीक बन जाते थे और अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। हमारे नबी तशरीफ लाए, हमारे नबी ने इसका ऐलान फरमाया कि जिंदगियों को यानी बेटियों को जिंदा दफन नहीं करना है। बेटियां जहमत नहीं है बल्कि बेटियां हमारे लिए रहमत है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, बेटियां हमारे लिए रहमत है। मेरे नबी ने सख्ती के साथ ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी बेटी जिंदा दफन नहीं की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी के बारे में हमारे कुरान में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको तमाम कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। रहमत का मतलब होता है कि बरसना, यानी किसी के ऊपर बारिश बरसना, रहमत बरसना अल्लाह की। तो हमारे नबी हम सब के लिए, पूरी कायनात के लिए, किसी एक कास्ट का जिक्र नहीं है, मुसलमानों का जिक्र नहीं है, हिंदू का जिक्र नहीं है, सिख का जिक्र नहीं है, ईसाई का जिक्र नहीं है, बल्कि उसमें जो है अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, हमने आपको तमाम कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा। तो इसलिए हमारे नबी मुसलमानों के लिए भी रहमत है, हिंदुओं के लिए भी रहमत है, सिख ईसाई सब के लिए रहमत है। लेकिन शर्त यह है कि उनके तरीके को अपनाएं। जैसे हमारे नबी ने हमेशा सच का साथ दिया, झूठ से दूर रहे, उसकी मुखालिफत की, और लोगों जो जुल्म करते थे, सितम करते थे, उनको पास रहने को कहा कि किसी के ऊपर जुल्म ना करो, अपने पड़ोसी का हक अदा करो। यहाँ तक कि नबी ने फरमाया कि अगर किसी का पड़ोसी भूखा सो जाता है रात को, अगर भूखा सो जाता है तो उसका खाना भी हराम हो जाता है। अब यहाँ भी ये जिक्र नहीं है कि कौन है भूखा सोने वाला, पड़ोसी कौन है, इससे मतलब नहीं है, बल्कि पड़ोसी है। अगर आपका पड़ोसी भूखा सो गया तो अल्लाह तबारक व तआला आपके खाने को भी हराम कर देगा, आपका पीना भी हराम है, इसलिए कि आपका पड़ोसी भूखा सो गया। उनका आज जन्मदिन है, हम जन्मदिन मनाते हैं 12 तारीख को चांद को, और उनकी खुशियाँ मनाते हैं। तो उन्होंने हमें इतना बड़ा पैगाम दिया।
पर इसमें एक एक्सेप्शन है, जन्मदिन पर क्या आप संविधान में संशोधन करते हो तो आपको वोटिंग करानी पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की हिदायत के लिए कमोबेश 1 लाख या 2 लाख 30,000 नबियों को भेजा और वोटिंग करा कर आप तय करेंगे जाहिर एतबार से जो आए तो हमारे नबी जिसके आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, जिसे हम विलादत भी कहते हैं, पैदाइश भी कहते हैं, आज के दिन तशरीफ लाए। तो इस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो फरिश्तों के जरिए जो फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन है उसके जरिए 3 झंडे लेकर के भेजे कि 3 झंडे को नस्ब किया जाए। तो उसी सुन्नत को हम लोग अपना रहे हैं कि जब अल्लाह ने उस हबीब को भेजकर झंडा नस्ब किया तो हम भी उसी झंडे को लहराकर अल्लाह और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हैं। उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने दिवस मनाया तो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कड़ी में पटौदी उन्होंने कहा था चेयरमैन इज राइट, प्लीज टेक योर सीट। जन्मदिन इसी मनाया। तरीके से जामिया जब भी कोई अहले सदस्य सुन्नत ट्रांसग्रेशन करता तुम है, इस्लाम मदरसे में जैसे एक जुलसे हम का बात आयोजन कर रहे हैं किया गया। एयरपोर्ट्स की, मदरसे में पहुंचे और अचानक वो उलेमाओं कहेगा ने हजरत मोहम्मद साहब की जिंदगी के बारे में रेलवे तकरीर स्टेशन के अंदर भी और क्रांतिकारी नमाज भी पढ़ी अच्छा बदलाव हो रहा तथा है, हुजूर के क्योंकि बताए गए बहुत रास्ते अच्छी हो पर रही चलने है। की पर भी बात तो एयरपोर्ट की मान्यताओं के अनुसार तो बेटा हजरत बहुत अलर्ट मोहम्मद होना पड़ता साहब है। का जन्म फिर क्या है 570 ईस्वी में कि आपके रबी टीचर का आपको ज्यादा अधिकार है, 12वें दिन चेयरमैन को मक्का तो में परसुएड ही करना पड़ता है। मोहम्मद साहब का जन्मदिवस मुसलमानों ने एक त्योहार ताकत के चेयरमैन रूप की में काफी मनाया है। तथा एक जुलूस भी निकाला गया। और कुछ ये लोगों ने जुलूस उसको जामिया महसूस भी किया अहले है। सुन्नत मदरसे से निकलकर पुरानी तहसील मेहता चौक व्यापारी मोहल्ला होते हुए क्योंकि वापस मदरसे में पहुंचा। इस The जुलूस में temple of the सैकड़ों की democracy संख्या में cannot be मुस्लिम allowed to be समुदाय के sacrilege, और बच्चों ने हिस्सा लिया। ravaged इस जुलूस by में बच्चे disturbance युवा and हाथों disruption। में तिरंगा लिए और इस्लाम आपको एक का छोटी सी बात लिए बताता हूँ। हुए जुलूस में शामिल जब ये बिल पास हो रहा था, गैलरी के अंदर महिलाएं और बच्चियां थी। इस दिन को खास करने के लिए बेटा आई पुट ऑन द चेयर 17 वुमेन पार्लियामेंटेरियंस दे प्रिजाइडेड ओवर द हाउस। आपने देखा होगा पीटी उषा, जया बच्चन, लता देव, सोनिया नंबर एक ने ऊपर से भावना में कुछ कह दिया, नारा लगा दिया, कुछ है मैं डांस कर रहा हूं। तो सबने कहा कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। डिसिप्लिन तो देखिए कि सदन में क्या कर रहे हैं। कई चिट्ठियां आई, सबने कहा सभापति महोदय आप गैलरी में क्या हुआ उसकी जांच कीजिए और साथ में इस बात की भी जांच कीजिए कि आपके सदस्यगण क्या कर रहे हैं। Members of Parliament have to exemplify their conduct. This can be appreciated by boys and girls. This can be appreciated by everyone. This becomes a cause of following it. तो अच्छा प्रश्न है बेटा, देखना पड़ता है। दूसरी बात, क्योंकि बेटी ने पूछा है, कई बार कोई भी कहता रहता है हम उधर देखते हैं, क्योंकि देखेंगे तो बोलने का मौका देना पड़ता है। इसलिए एक एक्सप्रेशन बनाया है। अर्जुन जी को तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि अर्जुन का तो नजर हो रही है। कैच द आइज ऑफ द स्पीकर, द मोमेंट यू कैच द आइज ऑफ द स्पीकर, उसको हाँ या ना तो करना पड़ेगा। कई बार उदाहरण के तौर पर राज्यसभा में ऑन माई राइट सरकारी तंत्र बैठता है, ऑन माई लेफ्ट प्रतिपक्ष बैठता है। तो माननीय खड़गे जी ने कहा कि सभापति जी आप तो राइट की तरफ ही देखते रहते हैं। मैंने कहा खड़गे जी मेरा दिल तो लेफ्ट में है। की बातें भी होती रहती हैं। गुड क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन, स्पीकर की आईज नहीं करो तो मुझे पता ही नहीं कि ठीक नहीं है। Scholarships, internships, and second, can you please guide us to be a leader of maybe on a small scale
my school. Number one, I here announce we will have 5 interns who will assist Chairman Rajya Sabha during winter session. All over the world, change is brought about by students. They are thinking minds. They don't carry their baggage. You must put सरकार इतना खर्चा करती है, जनता आपको चुनकर भेजती है, उस वजह से आपका बहुत बड़ा पद है। यू आर प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल। जब एमपी आता है तो जिलाधीश रिसीव करता है, और जिलाधीश कौन है? जिसने धरती का सबसे मुश्किल एग्जाम पास किया है। क्यों करता है? क्योंकि वो put your representative in the dock. You have to be disciplined, you have to contribute, you have to do your duty. Number 2, यदि अगर स्टूडेंट्स फील करते हैं कि हमें सरकार को कुछ करना है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर का मैकेनिज्म। मौलाना गुलाम रब्बानी ने बताया कि आज के दिन हजरत मोहम्मद अल्लाह के नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस वक्त के लोग बेटियों को जिंदा दफनाते थे। हमारे नबी तशरीफ लाए और उन्होंने ऐलान किया कि बेटियां जहमत नहीं बल्कि हमारे लिए रहमत हैं, और सख्ती से ऐलान किया कि आज के बाद बेटियां जिंदा दफन नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच का साथ दिया। उन्होंने कहा कि नबी का फरमान है, किसी पर जुल्म ना करो, महिलाओं का सम्मान करो और अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाता है तो आपका खाना भी हराम हो जाता है। ये थी पटौदी से रफीक खान की रिपोर्ट। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और मृदुल पत्रिका देखते रहें। हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। हमारे देश की सेवा कर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के नबी बनकर के इस दुनिया में आए, आज की तारीख जो 12 तारीख है, इस दिन सुबह 4:35 पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। इस दुनिया में आए, उस टाइम का माहौल ये था, उस टाइम का वक्त ये था कि लोग तारीकी में छुपे हुए थे और अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे।